दिस इज अ डमी एग्जांपल व्हाई. ठीक है. माइग्रेशन, नॉन फॉर्म जॉब्स, agrarian distress. Can you make something out of it? So feminization basically means that the increase of women participation in agriculture in developing countries. So some migration would mean that if the male members of Hmm. the Very good. family are migrating to urban centers Very good. for jobs, then that would be a push factor, I think. Very good. Very good. So the male population is looking for non-farm jobs. ठीक है. While in the rural areas, you have paucity of non-farm jobs, Yes, sir. right? So you have increasing number of women in agriculture. ठीक है. There is agrarian distress, so on and so forth. आगे बढ़ते हैं. Issue. Work increase हो रहा है. Ownership decrease credit and mechanization gap. Tell me. Put it into words. Yes, sir. So, I can say that there are various issues. For example, uh, in many families, there are still patriarchal mindset where females are still not allowed to work outside, be it in Ah, this is agriculture. this is quite the contrary. Feminization of agriculture. The So, workload has increased both in the house and in the farm, both side sir, and for the women. ownership of land primarily Yeah. Acha, remains with the by the way, males. because the topic is feminization of agriculture, is that the reason only feminists are speaking or only women are speaking? So everyone should be a feminist, sir. Okay, So, I would say double burden. double. This is one issue. Yeah, double Double burden burden. issue. Double ठीक है. burden issue. ठीक है. So traditionally, the work that was considered to be laborious and which was traditionally performed by men, the same work is being performed by women. The same laborious work. ठीक है. Plus they have the double burden of taking care of the household, the kids. Work is increasing. But what about ownership? So land ownership is mainly male dominated, sir. Yes, Okay. So you have responsibility without ownership. So guys, these without ownership. keywords, these jargons are quite valuable. So, Responsibility without ownership. can we use the term proxy candidate here regarding this context? Proxy candidate. Yes, for females. Like the ownership is when owned by their male partners. Can Fine, we say fine. See, so? here we need to be more mindful with respect to which paper we are catering to. Now, this particular aspect, feminization of agriculture, a question on it can be asked either in paper 1, GS paper 1 or GS paper 3. That is more likely. और आप जो कैंडिडेट की बात कर रहे हो, it sounds more suitable for GS paper 2. So it's not wrong per se, right? लेकिन out of character नहीं लगना चाहिए. जब हमने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ओनरशिप, काफी ऑर्गेनिक लग रहा है. सो ओनरशिप नहीं है. ठीक है. क्रेडिट. But the credit facilities are not available to female farmers to that extent, sir. Why is that? Sir, is it due to lack of ownership? Very good. So Sir, you don't own assets, right? So how would the bank provide credit if you don't have anything to mortgage, anything to pledge, Yes, sir. right? So responsibility है, काम भी आपको करना है, लेकिन ओनरशिप नहीं है. That is translating to paucity of credit. अच्छा, अब इसका एविडेंस अगर देखें गाइस, ऑपरेशन होल्डिंग्स कम है. So roughly 3/4 of agricultural labor today is performed by women. लेकिन ऑपरेशनल होल्डिंग्स की आप बात करो, रीजन वाइज इट इज एनीवेयर बिटवीन 10 to 15%. यहाँ पर हमने 14% लिखा है. ठीक है. रेंज भी अगर पता है तो काफी है. यहाँ पर मिसमैच है. ओनरशिप नहीं है, ऑपरेशनल होल्डिंग्स नहीं है, लेकिन लेबर आपका ही है. और एविडेंस के तौर पर हमने क्या लिखा है यहाँ पर? डेटा. अब यहाँ पर डेटा के अलावा गाइस बहुत सी चीजें आ सकती, एग्जांपल आ सकता है, किसी केस स्टडी का रेफरेंस आ सकता है. एग्जांपल्स, एविडेंस कैन बी एनीथिंग. यहाँ पर और एग्जांपल अगर हमने दिया है, कुटुंबश्री, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, so on and so forth. Now these are initiatives towards the empowerment of women. SHGs के बारे में भी लिख सकते हैं, सर. या ये उसी डायरेक्शन में, कुटुंबश्री की जब हम बात Yes, कर sir. रहे हैं, ये हाँ, केरला sir, SHG गवर्नमेंट का का है. example. Yes. हाँ. अच्छा, वे फॉरवर्ड. Sir, the last two I understood, sir. I didn't understand joint Joint titles. Is it titles is regarding ownership? ownership of land and all, or bank joint accounts. What is this, sir? जॉइंट टाइटल्स मतलब, टाइटल का मतलब, दिस इज अ टेक्निकल टर्म. ठीक है. जब बोला जाता है कि भाई
अगर मैं बोलूं कि अखिल होल्ड्स द टाइटल टू दिस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स अखिल ओन्स दिस प्रॉपर्टी। तो जॉइंट Yes. ओनरशिप का मतलब हो जाएगा जॉइंट टाइटल्स। सो जब, कीप इन माइंड गाइस, कीप इन माइंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग आंसर्स, ठीक है, टू such kind of questions, whenever you have such technical terms in your mind, use them. ऐसा मत सोचो कि ये टाइटल्स क्यों, क्या यूज करना, सिंपल भाषा यूज करेंगे, सिंपल भाषा को मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो जॉइंट टाइटल्स, तो एक तरीका हो सकता है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वहां पर ट्रांसफर करना एक रेडिकल और रेवोल्यूशनरी स्टेप हो जाएगा। So at least Yes. you can have a midway house, you can have joint titles, you can have producer organizations, women producer organizations, gender budgeting, so on and so forth. अब guys यहाँ पर, now this is not an ideal note, feminization of agriculture में आप बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो, but guys we have tried to provide a structure to it. ऑलमोस्ट एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रो टू योर मेन बॉडी टू योर वे फॉरवर्ड, जो आपका कंक्लूजन है। सो द इनसाइट इज दिस गाइस, बीट फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बीट अदर सब टॉपिक, वी आर एक्सपेक्टेड टू मेक माइक्रो नोट। सबसे पहले माइक्रो नोट का क्या मतलब गाइस, यहाँ पे आपने देखा हमने कीवर्ड्स यूज किए, कीवर्ड्स। माइक्रो नोट्स का एक गलत मतलब काफी बार निकाला जाता है कि छोटे नोट्स अगर होंगे दोज आर माइक्रो नोट्स, या वन पेजर नोट्स होंगे दोज आर माइक्रो नोट्स। दोज आर नॉट माइक्रो नोट्स। अभी बहुत मार्केट में फैशन सा चल रहा है, वन पेजर नोट्स, वन पेजर नोट्स। किसी रैंकर के काम आ गया होगा वन पेजर नोट, इसका मतलब वो नहीं कि, ऐसा नहीं कि दैट इज समथिंग आइडियल। माइक्रो नोट्स का मतलब ये है गाइस, यू यूज कीवर्ड्स। जैसे माइग्रेशन का मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे थे, ये आपको तुरंत नहीं समझेगा क्योंकि आपने ये नोट्स नहीं बनाया ना। लेकिन मान लो आपने ये बनाया था माइग्रेशन, आपने लिख दिया सिर्फ, आपको एग्जैक्टली इसका मतलब पता है, मेल माइग्रेशन हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से विमेन के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। डॉन गोइंग क्रेडिट यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपने ये लिखा होता आपको पता होता कि वुमेन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काम करना भी चाह रही है लेकिन उनके पास क्रेडिट ना है, ना मिल पा रहा है। उसका रीजन साइड में ही लिखा है, ओनरशिप नहीं है। कीवर्ड्स गाइस, कीवर्ड्स में हम क्यों लिखते हैं, आर नोट्स शुड बी आर ट्रिगर्स। लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। जैसे प्रीलिम्स पेपर में, प्रीलिम्स एग्जाम में हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता, उसी तरीके से मेंस एग्जाम में भी हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता। अलॉट like 7 minutes to 10 marker question, 9 minutes to Yes, 15 marker question, that's fine। लेकिन आप अभी अगर किसी टॉपिक पर अगर आंसर लिखने को बैठोगे, यू माइट टेक 3 times ऑफ दैट टाइम। 7 के बजाय हो सकता है 21 मिनट आपको लग जाए, yes, अगर आप सोच सोच के लिख रहे हो, बहुत अच्छा आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हो। सो द थिंग इज, हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट and the most germane points, examples, data, even जैसे हम बात पहले कर रहे थे, introductions and conclusions in a prepared format। yes, introductions और conclusions काफी हद तक हम prepared format में रख सकते हैं, at least for the predictable topics, और at least for the topics which are more theoretical। GS4 की अगर बात करें, ऑप्शनल में तो ये कंपलसरी है। there once you see the question, you understand the demand of the question, and as per the demand of the question you start using the same content that you have framed in a micro format, in a keyword format, and that one keyword guys, ये एक कीवर्ड आपको दो दो चार चार पांच पांच सेंटेंस लिखने की शक्ति प्रदान प्रदान करता है, बिकॉज दैट क्लैरिटी यू ऑलरेडी हैव इन योर माइंड। जैसे डाउन गोइंग क्रेडिट हमने यहां पर लिखा, ठीक है, सो आप वहां पर डेटा लिख दो कि X% लैंड होल्डिंग है, उस वजह से क्रेडिट जो है वाई वाई से जेड की रेंज में मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। देर आर दीज रीजन्स विच हैव SHG कंसोलिडेशन, सो वहां पर फिर भी क्रेडिट ज्यादा मिलता है, लेकिन नॉर्दर्न साइड्स ऑफ इंडिया में आप जाओगे रिलेटिवली कम क्रेडिट मिल पाता है बिकॉज ऑफ लेस SHG कंसोलिडेशन। Sir, I अर्चिशा had a विल टेल नहीं सर, question. नॉर्थ इंडिया में इतना भी बुरा नहीं है। No, no, sir, I went to South India. It's really good. So, ओके, sir, I was saying, sir, to what extent and how much data should we be using in an answer, sir? That's a little bit of a doubt I have, sir. Because, like, should every example or every point have some sort of a numerical data ओके, in ये GS? आप आंसर राइटिंग की बात कर रहे हो, आई गेट हाँ, दैट, बट लेट्स फोकस मोर ऑन नोट मेकिंग नाउ। okay, sir. ठीक है, Okay. Hmm. just to give a quick reference or quick clarity to your question, देखो, not every data point, not every example can be used and it is not supposed to be used। you have only 150 words in a 10 marker, Mm-hmm. so use the best possible। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 14% ऑपरेशनल होल्डिंग्स लिखा है, so Okay. हो सकता है ये मुझे सबसे बेस्ट डेटा पॉइंट लगा हो,
Yes, sir. और क्योंकि मुझे ये बेस्ट डेटा पॉइंट लग रहा है, मैं एग्जाम में भी इसी को यूज करूंगा. नाउ आई माइट हैव अ रिपोजिटरी ऑफ 10 such data points. हम्म. I won't be able to retrieve all that. तो So the सर वही idea is, नोट्स में सर, नोट्स में सर कितने हमें रखने चाहिए, क्योंकि सर आई टेंड टू ओवरडू इट सर, मुझे ऐसा लग रहा है. minimum, see, notes have to be minimalist. यस सर. Only then you will have maximum retention. Please understand this. Only हम्म. when your notes are minimal, your हम्म. retention would be maximum or maximal. The more verbose your notes are, the less will be your retention. यहाँ पर छोटे छोटे बनाना इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ. मतलब बस जितने ज्यादा छोटे नोट्स हम बनाएंगे उतना ज्यादा हमने कुछ अचीव कर लिया. इट्स अ मीन्स, गाइस. इट्स Yes, इट्स sir. ऑल अ गेम ऑफ साइकोलॉजी. इट्स ऑल अ गेम ऑफ मेमोरी. हम्म. रिटेंशन एंड रिकॉल मैटर्स. ठीक है. एंड दीज आर योर मेमोरी ट्रिगर्स. आप जैसे ही किसी कीवर्ड को देख रहे हो आपको कुछ याद आ रहा है. Yes. इसका फायदा ये होता है गाइस, जब इतने माइक्रो फॉर्मेट में आपके नोट्स होते हैं, यू विल बी एबल टू रिवाइज सच नोट्स 100 times, 500 times कंपेयर टू वर्बोस नोट्स. हम बोलते हैं कि सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करना बाकी है, रिवीजन करना बाकी है, ये काफी चलता रहता है. जब नोट्स ही हमारे इतने वर्बोस होंगे तो रिवीजन विल बी अ चैलेंज. बट द स्मॉलर आवर नोट्स आर, द मोर आइटरेशंस वी कैन डू ऑफ रिवीजन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. इक्वली एप्लीकेबल टू प्रीलिम्स और मेन. प्रीलिम्स में ऑल्दो हम नोट मेकिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करते, वहां पर हम एनोटेशंस करते हैं. नाउ दैट्स अ डिफरेंट फिलोसफी. उस पर हम आएंगे गाइस. ऑल दोज सजेशंस दैट आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू कंबाइंड प्रिपरेशन ऑफ मेंस एंड प्रीलिम्स, कि भाई कंबाइंड नोट्स बनाओ, और ये कंबाइंड नोट्स आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएंगे. गाइस, दैट माइट हैव वर्कड इन द पास्ट बट इट डजंट वर्क टुडे. आप पिछला प्रीलिम्स का पेपर और पिछले मेंस के पेपर निकाल कर देख Yes, लो, sir. Yes, sir. और Yes, sir. खुद आकलन करो, खुद इंट्रोस्पेक्ट करो कि कौन से वो नोट्स होंगे जो इस प्रीलिम्स में और इस मेंस में एक साथ काम आ जाएंगे. जी. तो दैट्स नॉट द केस एनी मोर. मेंस के Yes. नोट्स अलग ही बनेंगे. प्रीलिम्स की जहां तक बात है उस पर हम अलग से बात करेंगे. नोट मेकिंग में प्लीज डोंट मेक अप दिस खिचड़ी कि प्रीलिम्स के भी जी. आपको साथ में ही बनाने हैं. अल्टीमेटली फिर हो ये जाता है, नोट्स के नाम पर एक विशाल राक्षस बन जाता है, जो कि ना प्रीलिम्स में काम आता है ना मेंस में काम आता है. दोनों एग्जाम्स की अलग फिलोसॉफी है. जैसे हमने कीवर्ड की बात की, एग्जाम में हमारा पेन चलता रहना चाहिए. उसके लिए ये कीवर्ड्स इनग्रेन होने चाहिए. जैसे ही कीवर्ड ध्यान में आया, कुदुम्बश्री, तो कुदुम्बश्री के बारे में आपने लिखना शुरू कर दिया, केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, एसएजी लिंकेज क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग जैसे ही आपको क्लिक हुआ, आपने लिखना शुरू कर दिया. मान लो अगर फेमनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पर क्वेश्चन है, मेंस के नोट्स जो है, दीज आर ऑलमोस्ट यूजलेस व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स के नोट्स आर ऑलमोस्ट यूजलेस व्हेन इट कम्स टू मेंस.